नेक्स्ट इज, हम्म इस लेक्चर में हम करेंगे वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट्स। वेक्टर प्रोडक्ट रहती है हमारी, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम्म और एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दिस, जो भी हमने पहले किया सारा, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू फाइंडिंग एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड यानी वेक्टर्स की एप्लीकेशंस हैं, एंड हम्म इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें मैंने कुछ वर्कशीट के प्रॉब्लम्स भी रखे हुए हैं, वो सारे के सारे करने हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की किस तरह से डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसने, ये कह रहा है कि हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन, where u is this vector, u is components u1, u2, u3, and v is this हम्म vector. Then you can compute the dot cross product like this. This is actually very difficult to memorize this definition. So let me tell you, this is actually taken from this. We write this definition of cross product. We put unit vectors in the first row in a determinant of 3 by 3, and put the components of the first vector in the second row, that is u1, u2, and u3, and put the components of the second vector into the third row, v1, v2, and v3. Is it clear? this is matrix ठीक है. And Yes, clear. this is not a matrix, it is a determinant. Okay, determinant. Yeah. Determinant. So when you expand this determinant by row number one, and you know how to expand a determinant, so take the first element, right? Expanding by row one, Yes. I am expanding Second. by row one. So what you will get, u2 v3 minus u3 v2. So because when we take U3, I, V2, yeah. yes, when we take I, so we will eliminate the first row and first column. So we will have this 2 by 2 determinant, and we will cross multiply like this. Mm-hmm. Clear? Similarly, we will Okay, take okay, clear. the Yeah. second element. Second element is j, J and we component. will eliminate first row and second column. So we will have u1 v3 minus u2 u3 v1, like this. Is it clear? U3, V1. Second component. Yeah. U3, V1. Okay. Yep. Yeah. And minus Similarly, K and we then will K, take K. the Left side. last element, and we will eliminate the first row and third column now. So we will be left with u1 v2 minus u2 v1. Is it clear? Plus or minus? Plus or minus? Minus, minus. Here it will be No, minus. minus J and then Yeah. These are plus in alternate the, signs. yes, this, yeah. This will be plus, then Okay, minus, okay. then plus. Alternate signs. So these are Okay. three components. I can put it in a single vector. So x component is u2 v3 minus u3 v2, right? And j component is Mm-hmm. u3 v2 u3 v1 minus u1 v3, V. Yeah. because this negative sign will be multiplied inside, so this will become plus. Yeah. Okay, I am That's writing okay. after That's clear. multiplying this two inside. So the last k Okay. component will be u1 No change. v2 minus u2 v1. If you compare this with these given components, you will see that these are actually same. X component, Y component, Z component. Mm-hmm. These are same, right? So memorizing this definition is very difficult. Memorizing this is easy. So whenever you compute cross product, you will use this definition. Mm. This is same. So what is definition is I, J, K. Put put these unit vectors in the first row, and components of the first vector in the second row, and component of the second row vector in the third row. This very simple. This is u cross v. Then ये आसान है determine. ना मुनीब? ये याद करना आसान है. Okay. I, चलें आगे. J, and K, and then यस V1. यस, CJ से. ये मैं नोट्स आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं. ठीक अब है. ये आपने की है, पता नहीं नहीं की एक्सरसाइजेस, तो
दो नहीं, वेक्टर्स के और ऐसे नहीं दरमियान। किया। लेट्स सोल्व वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड नहीं, करना है यू। एक्चुअली इस वो तो कोसाइन वाला लगा लेंगे इधर, लाइक दिस इज ओके। आई थिंक आप या इधर ये आ जाइए, दिस वन, ये फिफ्थ वाले कौन क्वेश्चन में ना, ये वाला? ये पांचवा वाला। सही सही, मैं ये भी यही वाला जो करने है ना, वाला था। मैं ये वो। पूछने वाला था, पूछने वाला था मैं आपसे कि कौन से आपको आ जाते हैं, तो वो छोड़ देंगे ना वो। हम्म। सही है, ये पांचवें फिफ्थ पे वाला करें से तो बाकी वो सही है, प्रोजेक्शन। सही है, डन है। सो ये प्रूव करना है ऑर्थोगोनलिटी के केस में, अगर दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर हैं तो ये होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है? सो वी विल राइट अ प्रूफ फॉर हम्म। दिस। जी, कैसे करेंगे प्रूफ? एनी आइडिया? ट्रायंगल इनइक्वालिटी के साथ, आई थिंक, जो, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, या एक दूसरा तरीका था पैरेललोग्राम के साथ, या जो जिसमें आपके दो साइड्स इक्वल होते हैं, अगर आप ये उनको दिखा देते हो। नहीं, लाइक मतलब आप किस डायरेक्शन पे ये है? आप देखो, आप बताओ। परपेंडिकुलरिटी के केस में अगर दो पहले इसका वेक्टर्स डिटर्मिनेंट, परपेंडिकुलर, सॉरी, डिटर्मिनेंट क्या था? अगर आप गौर से देखें ना, तो हाँ, तो ये देन असल में इसमें ये pythagoras थ्योरम है असल में। पाइथागोरस थ्योरम तो है, लेकिन उसका जो आई थिंक, जो एज फार एज रिमेम्बर, जो थ्री लाइन का जो प्रूफ था ना, उसके अगेंस्ट मैं आ जाता हूँ, तो इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के साथ आई थिंक करते हैं। पर जो दूसरा तरीका था जो मुझे याद है उसका, अगर आप, आई थिंक क्या था, डॉट प्रोडक्ट जो था ना, उसको एक्सपेंड हाँ करेंगे हाँ तो देन हाँ वो भी हो जाता है। हाँ, ऐसे हो जाता, ऐसे लिख सकते हाँ, हैं नहीं ना। नहीं, आप कौन सा, हाँ जी, तो इसका वो, लाइक, बेस्ट सोल्यूशन, लाइक बेस्ट वाला कौन सा है जो आप प्रेफर करेंगे यही है, यही इसके है। लिए? ये रिलेशनशिप यूज अच्छा, यही करेंगे, है। ओके। नॉर्म और डॉट प्रोडक्ट का रिलेशनशिप यूज करेंगे। सो मल्टीप्लाई कर ठीक देंगे, है। यू प्लस यू डॉट वी प्लस वी डॉट यू प्लस वी डॉट वी, एंड यू डॉट यू इज इक्वल या टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर्ड यूज प्लस योर स्क्वायर, या v dot v is, this is 2 times u dot v, वीज। and norm of v squared and norm of u squared. Now when two vectors are perpendicular to each other, what will be the value of dot product? जीरो नहीं होगा, या? Zero ही होगा। So this is simple, हम्म। done। सही है। ये लेफ्ट साइड हो गया। हाँ, ओके। हाँ, अच्छा, यू वी सही, का। ओके, फेयर एनफ। सही हो गया। हम्म। आगे चलें। अब ये सारे कंप्यूट करने हैं डॉट, ये ये क्रॉस क्लियर है। प्रोडक्ट्स, तो मेरे ख्याल से ये यस इजी यस। है। अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो जस्ट यूज दैट डेफिनेशन टू कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। सही है। आगे चलते हैं। देयर आर सम ये प्रॉपर्टीज ये इज क्लियर है, गिवन। ये कंप्यूटेशन का। या दिस थ्योरम 12 gives some properties of cross product and dot product and norms. So पहली वाली प्रॉपर्टी क्लियर है, क्लियर करते चलते हैं सारी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर u क्रॉस v करे और v क्रॉस u करे, ये तो क्लियर है। उनमें माइनस साइन का फर्क होता है, यानी ऑर्डर चेंज करने से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट वेक्टर मिलता है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देता है, लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। हम्म। ठीक है। और यू क्रॉस यू जीरो कैसे होगा? हम्म। यू क्रॉस यू, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जीरो वेक्टर, हाउ? जीरो। वैसे आई डोंट नो, प्रॉपर्टी पैरेलल एक मिनट, बोलेंगे इसको, देन उसको दिखा सकते हैं। एक क्योंकि इसका पता एक है हमका वो, लाइक, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। एक मिनट मुझे दे, ओके, मैं अभी आप कनेक्शन चाहिए। ओके। मैं कनेक्शन चेंज करता हूँ, मुझे कुछ नो मसला नजर इट्स। आ रहा है इसमें। एक सेकंड। नो इट्स, कर लो। हाँ हाँ, मैं हॉटस्पॉट यूज करूंगा, एक मिनट।
आ गई, हाँ, एक मिनट, आ गई। ओके, कैन यू हियर मी? यस। यस, चेंज कर ली जी हमने जी। कनेक्शन। तो ये साबित करना है कि यू क्रॉस वी जीरो, यू क्रॉस यू कैसे जीरो है, नल वेक्टर है। हाउ? पैरेलल है तो अगर उसको करेंगे नॉर्म, आई थिंक जो तो आपने प्रीवियसली नहीं मेंशन नहीं किया नहीं था, नहीं, नहीं नहीं, स्क्वायर। अभी तक क्या पढ़ा है नहीं, हमने क्रॉस उधर नहीं प्रोडक्ट के लगेगा। बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ा है हमने? हमने ये पढ़ा है कि जब उसका जो 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 कंपोनेंट जब हम मल्टीप्लाई अगेंस्ट करते हैं, इट आई क्रॉस थिंक एक प्रोडक्ट की फैक्टर के साथ जीरो हो जाए। अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है प्रीवियस, मुनीब, जी जी, उस डेफिनेशन पढ़ी डेफिनेशन है। को अगर हम देखें, अगर उसका हमने डिटर्मिनेंट लें तो वो जीरो नहीं होता। हाँ, जीरो होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो रोज हम्म इक्वल है, सेम है एग्जैक्टली, जब दोनों वेक्टर सेम है तो दो रोज सेम हो जाएंगी ना। अगर दो सेम है, रोज जब इसके सेम होंगी डिटर्मिनेंट तो निकालेंगे जीरो होगा ना, अल्टरनेटिंग साइन नेचुरल। आएगा। ये नेचुरल, लेकिन अगर हम उसको कंप्यूट करेंगे तो उसमें आएगा प्लस एंड देन माइनस, देन वो जीरो हो जाता है हाँ सही है, ऊपर। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है अच्छा। डिटर्मिनेंट की, अगर दो दो रोज जीरो सेम है ना एग्जैक्टली, तो हम्म। आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट रो भी ये है, सेकंड रो भी सेम है, तो जीरो ही आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। जीरो आएगा। या जी ओके। जी, जी जी। सो इसको प्रूफ करने की जरूरत, मतलब ये प्रूफ है इसका, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। सो अब इसका प्रूफ भी कर सकते हैं आप, डेफिनेशन यूज करके ही प्रूफ करने हैं हमने। सही है, नंबर 4 इज इम्पोर्टेंट। अब इसको प्रूफ करेंगे ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे इसमें, इसी तरह से u और v पुट कर देंगे, एंड वी विल कंप्यूट द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। 4 प्रॉपर्टी को देखें, या प्रूव कर सकते हम्म। हैं डेफिनेशन को यूज करके, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर अगर लेकिन, डेफिनेशन अगर आप उसमें डाल दिया तो उसके साथ तीसरा वाला, या नहीं, वो तो टी के साथ है। नो, हाँ हाँ, तीसरे में भी डेफिनेशन से आप करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तीसरे मैं में उसका वो कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकता है ये फोर्थ वाला प्रूफ उसके हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, इस 4 वाले में अगर आप पुट करोगे ना, u इक्वल टू u1, u2, u3 वेक्टर, एंड v इक्वल टू v1, v2, v3, सही है। और क्रॉस प्रोडक्ट हम्म कंप्यूट करके यहाँ पे रखोगे उसका मैग्नीट्यूड, और उसका स्क्वायर करोगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड कंप्यूट करोगे, दोनों साइडों को इक्वेट कर सकते हो आप। इसका प्रूफ यही है। हम्म, सही है। अभी इसकी सही है। डिटेल में हम नहीं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, और थोड़ा लेंदी ठीक है, है, कोई नो मसला नहीं वरीज। है। हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ, उस पे यूज करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी को, आप जहन में रखें। तो आगे चलेंगे। ये बाकी जो ये 5 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये इसको वापस आके हम देखते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, आगे चलें। हमने इसको प्रूफ करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम्म इसको प्रूफ हम ऐसे करेंगे कि हमें पता है कि u क्रॉस v नॉर्म स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर्ड प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर्ड माइनस u डॉट v। दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ जी, यही है ना? फोर्थ प्रॉपर्टी। या हाँ, माइनस u डॉट, यूवीज, हाँ। u वो डॉट तो v मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर्ड है। नहीं था। एक सेकंड, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। नेक्स्ट स्लाइड। आपने वो प्लस हाँ हाँ, लिखा है। यहाँ पे ना, ये तो प्रोडक्ट हाँ, था। प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना। यस। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ प्रोडक्ट। तो इट इज लाइक दिस। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली अगर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे पुट कर देना, हम्म डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे पुट कर दे, तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर्ड नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर्ड माइनस, डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है? डॉट प्रोडक्ट की यू वन ए, वी वन वो था जिस। हाँ, दूसरी सेकंड डेफिनेशन, एंगल वाली, थीटा वाली। कॉस थीटा। या ये जी। मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम्म। नॉर दोनों स्क्वायर्स जो हैं ये कॉमन आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यू कैन टेक इट आउटसाइड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी लेफ्ट। और हमें पता है 1 माइनस ओ, कॉस स्क्वायर साइन थीटा इज स्क्वायर्ड। साइन। जी जी। So यस this यस is यस sine यस यस। square theta. To take square root both sides, so you can have the second definition of the. Oh, sorry, you cannot take call it a second definition.
but you can compute the norm of the cross product by this formula. The formula for norm of the cross product. नॉर्म, नॉर्म ऑफ या द कर्व, ठीक है। यस, जब आपके पास एंगल हो दरमियान में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप ये यूज कर सकते हैं। सही है। हम्म। अब बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, म्यूचुअल। तो ये वाली 5 नंबर प्रॉपर्टी देखें अगर हम, तो ये कहती है कि यू डॉट, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। Triple ठीक scalar है, product means first we take cross product of two vectors and then dot product of the resultant with the left third vector like this. ये So कम्यूटेटिव नहीं है पूरा? ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऐसे होती है। यानी ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है ना, ये तीनों इक्वल होती हैं असल में। यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू करें, या फिर वी डॉट, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू ना, तो ये ऑर्डर सेम फॉलो करेंगे। हम्म। ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर वी सही है, डॉट सही है। डब्ल्यू क्रॉस यू करना पड़ेगा हमें, तो ये वी डॉट हाँ, डब्ल्यू ऑफ क्रॉस यू कोर्स। है ना ये। हाँ हाँ हाँ, सही तो है। अगर पहले डब्ल्यू रखेंगे तो डब्ल्यू के बाद यू यू आएगा, और फी। यू क्रॉस वी। हम्म। तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, दिस ऑर्डर विल बी लेकिन फॉलोड। उधर तो आपने फिफ्थ वाला, लास्ट वाला डब्ल्यू किधर? अच्छा, आपने पहले लिख दिया। ओके ओके। जी जी, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ये जो है ना, इक्वल होती है तीनों, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो करती हैं, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, हम्म। इस तरह से। सही है। सही है, लेकिन वो आई थिंक ठीक है, डेफिनेशन में ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में है, यहाँ पे ऑर्डर है नहीं, सेम। पहले देखना, डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, देन वी आ रहा है, देन यू। उल्टा है। कहाँ पे? नहीं, यही आप तो। वो जो डेफिनेशन पे ना, जैसे पहले आपने यू लिखा है, देन वी लिखा है, देन डब्ल्यू लिखा है। वो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो ओरिएंटेशन उसका पीछे से शुरू हो रहा है। इसने डब्ल्यू से स्टार्ट किया है, डब्ल्यू यू जी जी जी। वी। कोई फर्क डब्ल्यू यू वी। वो मैंने, हाँ। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई मसला नहीं। ऐसे हाँ। नंबर नंबर 6 कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। समझ आ रही बात? डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। अब वो, ओवर एडिशन हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट, यानी किसी एडिशन वेक्टर का ओनली। क्रॉस प्रोडक्ट, जी जी, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर एडिशन के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते यू हैं, यू ए क्रॉस ए प्लस यू यू क्रॉस बी। क्रॉस बी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। This is property number 6, right? So 7 is also same, the distributive property from the left side, right side, राइट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी ऑर्डर सेम होगा। तो ये इक्वल होगा यू क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी क्रॉस डब्ल्यू, राइट। और प्रॉपर्टी नंबर सही 8 है। कहती है कि यू क्रॉस वी का यू के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो भी जीरो आएगा, और यू क्रॉस वी का वी के साथ प्रोडक्ट करें तो भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो यू क्रॉस वी वेक्टर हमें मिलता है, ये इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू एंड वी। यानी यू क्रॉस वी जो है ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यू के भी परपेंडिकुलर होता है और वी के भी परपेंडिकुलर होता है। डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो आई है ना। हम्म। डॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ओके। क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो यू होने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। ठीक है मुनीब। अच्छा, प्रूफ यू वी कैसे करेंगे स्क्वायर, हाँ इसको? जी। जी। प्रूफ कैसे करेंगे? कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज पे ज्यादा नहीं करना चाहता। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है। इसको कैसे प्रूफ? सिमिलरली जो डेफिनेशन जो यूज किया था, जी, जिसमें उसका यहाँ क्या पर था यहाँ वो, पर यू वी। यहाँ पर डेफिनेशन पुट करेंगे। यू वी सही वगैरह है। में, लेकिन जो डेफिनेशन जो था एग्जैक्टली कौन सा था डेफिनेशन, जो वो जिसमें डेफिनेशन ये है ना मुनीब, अगर हम यू डिटर्मिनेंट यू डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट के साथ, हाँ जी हाँ जी। जो दो रोज अगर सेम होता है, लेकिन जस्ट कैंसल। ये वो नहीं, अब यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करोगे। नहीं नहीं, जब एक्सपैंड करेंगे तो तब उसका, जब फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब तो जीरो होगा ना, जब वो उसका वो आफ्टर एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन आप इसको यू से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, इसकी जगह पे इसकी डेफिनेशन हाँ, ओके एक्सपेंड ओके, करके रखें। ठीक है।
जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट ओके। करवाएंगे ना तो आपके पास जीरो आएगा। ये आप करके देखना। यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, इसका ठीक है। इसकी एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करके, अभी मैंने पहली स्लाइड में एक्सपेंड किया था ना इसको, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ मैं जी, हमने दिखा रहा हूँ। एक्सपेंड किया था इसको। ये पुट करोगे आप, ये पुट करोगे और इसके साथ ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा। ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना थ्योरम में, ये बिल्कुल इजी है, डेफिनेशन पुट यूज करके प्रूफ करना इनको इजी है, कोई मुश्किल नहीं। डेफिनेशन क्या है? यस। सही है। अब हम कहाँ पे थे, ओके, हम ये प्रॉपर्टीज क्लियर पे है। थे ना यहाँ पे। सो कहने का मतलब है कि यू क्रॉस वी जो वेक्टर होता है ना, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी हमें, हमारे पास अगर वेक्टर है यू और दूसरा वेक्टर है वी, तो वी यू क्रॉस वी जो हमें नया वेक्टर मिलेगा ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर मिलता है हमें, यानी इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा ये ऐसे। पूरे प्लेन के ऑब्वियसली, हाँ, हायर डिमेंशन हाँ है। ऐसे। ओके। जी जी। आगे हम्म, चलें। अब एप्लीकेशंस हैं कुछ। चलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है किस तरह से, अगर हम्म। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एक साइड है यू और दूसरी साइड है वी, दोनों वेक्टर्स हैं, सही, और उनके दरमियान एंगल है सही थीटा, है। दिस एंगल इज थीटा। ओके। सो अभी मुझे आप बताएं कि अगर परपेंडिकुलर वी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं मुनीब, पैरेललोग्राम में ओके। वी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो कि इस तरह से ड्रॉप हुआ है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अगर हमारा यहाँ पर थीटा है, तो इसमें अगर मैं साइन का रेशो हम्म। लूंगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोट ये हाइपोटेन्यूज, या या। हाइपोटेन्यूज। So can I find ठीक है। perpendicular from here? Perpendicular will be hypotenuse times sine theta. What साइन is थीटा, यस। hypotenuse? Gee, what is वी hypotenuse here? Because perpendicular, yeah, V magnitude. So it वी is में, V हाँ जी, norm. वी मैग्नीट्यूड, वी नॉट, यस। Yeah, एट द कंपोनेंट्स। this is this is height of this parallelogram. एज This is this is height. So ऑपोजिट, whenever we, ऑपोजिट जिसको बोलेंगे yeah, ना। जी जी जी। So what is base? Base is norm of U. This is base. एडजेसेंट। जी अच्छा। जी, बेस, ओके। ये अगर बेस लेंगे, ये बेस लेंगे, तो हाइट आपकी हम्म। होगी वी साइन थीटा, राइट। और दिस इज वी बेस साइन टाइम्स थीटा। हाइट, बेस हम्म। टाइम्स हाइट। तो व्हाट इज दिस, isn't it अच्छा, अच्छा, that अच्छा, अच्छा। we have just proved that this is equal to the norm of the cross product? नॉर्म ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, या इक्विवेलेंट है दोनों। जी जी जी। तो इसका मतलब है अगर हाँ। आपको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके ये दो साइड्स है यू और वी, और ये आपको गिवन है, वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल। तो आप क्या करोगे, इस पैरेललोग्राम का एरिया आप कंप्यूट कर सकते हो। जस्ट यू विल कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट एंड टेक इट्स हम्म। नॉर्म, आपको एरिया मिल जाएगा। नो नो, यस, एरिया, एरिया, एरिया ही था, आपने डेफिनेशन रुको, दिया था। डिस्टर्ब मत करो। सो मुनीब, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नो वरीज। 7 में आप देखें, एरिया ऑफ द पेलोग्राम निकाल सकते हैं, यू और वी आपको दिया हुआ है, डिटरमिन्ड बाय द टू साइड्स यू एंड वी। तो हम क्या करेंगे, क्या? सिर्फ सिर्फ हम यू क्रॉस नॉर्म। वी निकालेंगे और उसका नॉर्म कर लेंगे। तो पहले यू क्रॉस वी निकाल लेंगे हम्म। डेफिनेशन यूज करके। आपको पता है यू ठीक हमें है। गिवन है 2 3 0, 2 3 0 और वी -1। हाँ हमें जी। गिवन है -1 2 -2, और ये क्रॉस हम्म। प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, एक्सपेंड बाय रो नंबर 1। सो क्या ठीक है। आएगा, थ्री। आई उठाएंगे तो आपके पास आएगा -6 -0। सही है अच्छा, हमने मुनीब, मल्टी डायरेक्टली मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, यस। ऐसे करेंगे। ओके। उसके बाद जे उठाएंगे, जे उठाएंगे तो नेगेटिव में उठाएंगे, तो उसकी रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास आएगा -4 -0। इज इट ओके? यस, इट्स क्लियर, देन फाइनली उसके टेक बाद के पॉजिटिव। उठाएंगे 4, के उठाएंगे तो 2 2 टू द 4 और टू प्लस एंड 3 आएगा। -1, -1 माइनस, हाँ, 3, ये +3। 3 आएगा, हम्म। सही है। तो ये ठीक आएगा है। -6, इसके कंपोनेंट्स लिख देते हैं डायरेक्टली, -6 4, क्योंकि ये माइनस माइनस इंटू माइनस +4। प्लस हो जाएगा। हम्म। ओके, सो ये आ जाएगा 7। तो आपके पास 7, क्रॉस प्रोडक्ट या। आ गई है। अब इसका नॉर्म हमें करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो एरिया इज नॉर्म ऑफ यू क्रॉस वी।
क्यू क्रॉस वी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, उसका नॉर्म करेंगे। 6 का स्क्वायर माइनस होगा सिक्स 36, स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 16, 7 का स्क्वायर होगा 49। सो व्हाट, 49। ओह, ये जो भी आए, सिक्स ये प्लस इसका आपको 16। सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है मुनीब? ये तो हाँ जी, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा ये। ओके। क्लियर हो गया? जी और क्लियर। ट्राइंगल का एरिया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस पी क्यू और आर। ये तीनों वर्टाइसेस आपको गिवन है। अब ट्राइंगल हमें गिवन है इस तरह से। सपोज करें ये ट्राइंगल गिवन है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। आप क्या करेंगे मुनीब? सबसे पहले मैं देखूंगा इधर की परपेंडिकुलर किधर बनता है इधर, इन इन तीन क्यू, रेशियोज का ना, एरिया का। या आप इनको सीधा मैट्रिक्स में डाल दें, मे बी। पैरेललोग्राम दो होते हैं ना, अगर आप दो उसका हाफ लें पैरेललोग्राम का, तो एक वो नहीं हाँ बनेगा फिर हाइपोटेन्यूज से, उसका ऐसे ट्रायंगल बन करेंगे जाएगा। ऐसे इसको। इसको हाँ पूरा कंप्लीट कर दें, कंप्लीट कर दें, मतलब हाँ, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर, को ना। या इसको कंप्लीट कर देते हैं पैरेललोग्राम, बिकॉज ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। हम्म। सो अगर हम, अगर ये पी क्यू वेक्टर है तो ये भी पी क्यू वेक्टर है। एक नया पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू आर एस ले लेते हैं यहाँ पर। तो पी क्यू ठीक और है। एस आर दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से क्यू आर और पी एस, ये दोनों भी यानी इक्विवेलेंट है वेक्टर्स, ये इक्विवेलेंट वेक्टर्स हम्म। कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे और क्यू आर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको पूरा मिल जाएगा। तो हमें हम्म। ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल का एरिया आपको ऐसे मिलेगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हाफ हाफ ऑफ ये। पी क्यू क्रॉस क्यू आर, ऐसे करेंगे। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, हम्म। एरिया ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज द फार्मूला। अभी मुझे आप बताएं कि हम्म। पी क्यू और क्यू आर हम निकाल सकते हैं इजीली? जी, अगर इसको आप उसमें रखेंगे, उसका माइनस कर लें तो उसका वो हो हाँ जाएगा। माइनस कर लेंगे। बताएं आप, पी क्यू क्या होगा? टू माइनस माइनस वन, विच इज +3, देन नहीं सिक्स। नहीं, पी क्यू है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल माइनस करते हैं। फाइनल फॉर्म, सॉरी। वन माइनस माइनस टू, -2, या वन। पहला हाँ, एक्स पॉजिटिव कंपोनेंट थ्री क्या से होगा? शुरू होगा ना। +3, पी से क्योंकि लेके वन क्यू माइनस तक। माइनस टू। वन, सॉरी, -2। इट इज नॉट -2। So 1 minus -1, 2 will sorry. be Yeah, minus 1. yeah, sorry, sorry. Okay. 1 minus 6 will be -5. And 1 minus 1 plus 1 will be 2. Sabe? Okay. मुनीब सही है? Yeah, सही है। अच्छा, क्यू आर क्या होगा मुनीब? क्यू आर, सिमिलरली यही होगा। हाँ, 4 - 1, 3, 3, and then ओके, 6 - 1, 5, and 2 5, - 1, 1। 1। ये दोनों मिलके अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे जस्ट। अभी आगे आपको सारा पता है। ये क्लियर है, देन उसका वो सिमिलरली नीचे एक्सपैंड हो जाएगा। हाँ या हाँ, सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है एक्सरसाइजेस का। अच्छा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द हम्म। पैरेललोपाइप्ड, वी कैन कंप्यूट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड विद थ्री साइड्स। एक इसकी साइड है यू, दूसरी साइड है वी, और तीसरी साइड है डब्ल्यू, यानी एडजेसेंट अगर साइड्स हैं आपके पास, हम्म। तो आप एडजेसेंट इस साइड्स। इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम आएगा। तो इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बेस चूज करना पड़ेगा। अगर इसका बेस हम लेते हैं ये वाला, नीचे वाला यू और वी वाला, ये वाला बेस, तो इसका बेस क्या होता है, बेस का एरिया क्या होगा, इसका बेस का एरिया वो पैरेललोग्राम जो प्रीवियसली आपने डिफाइन पैरेललोग्राम किया है था। एग्जैक्टली। सो हम्म। वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड, आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस का एरिया तो आपको पता चल गया, दिस इज हम्म। वॉल्यूम, वॉल्यूम। बिकॉज वी यहां पर भी है तो ये डबलिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। हम्म। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ओ एल से, यानी वॉल्यूम। एरिया ऑफ द बेस क्या ओके। होगा मुनीब? अभी हमने निकाला है कि अगर बेस जो है वो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया होगा वी क्रॉस डब्ल्यू का नॉर्म, नॉर्म ऑफ वी क्रॉस डब्ल्यू, नॉर्म। राइट? टाइम्स व्हाट विल बी द राइट। हाइट। नाउ हाइट इज अ प्रॉब्लम, यू यू हाइट नहीं है। तो हम क्या हाँ, करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका तो एंगल वी और निकालना पड़ेगा। मुनीब देखें,
अगर हमारा एक वेक्टर है v, दूसरा वेक्टर है w, तो क्या कोई ऐसा वेक्टर हम हम्म मालूम कर सकते हैं जो u और w दोनों के परपेंडिकुलर हो? अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या वो इक्वल टू जीरो हो ना, उधर होगा नहीं जो नहीं, प्रीवियसली आपने बताया। क्या कोई ऐसा वेक्टर होगा जो u v दोनों के परपेंडिकुलर हो? वो कैसे मिलेगा हमें? दोनों के परपेंडिकुलर। वही जो दोनों के परपेंडिकुलर, वो जो प्रीवियसली आपने वो क्रॉस किया था प्रीवियस स्लाइड में, आपने उसको वो या जो या या माइनस या किया। या या तो दो वेक्टर्स अगर आपके पास हैं एंड यू वांट टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड w, तो आप क्या करोगे? सिंपली उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स क्रॉस यू प्रोडक्ट। नॉर्मल वेक्टर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स। क्लियर हो गया? क्लियर। यस। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया हमने। सही है। ये हाँ, अभी देन इसका हमारा इसका क्योंकि ये जो हाइट, जो परपेंडिकुलर हाइट है ना इधर, इट्स या जो सही है। बेस के ओके। परपेंडिकुलर हो गए ना। अभी बेस, अगर ये बेस है, तो यू v हम्म क्रॉस w क्या होगा? इस बेस के परपेंडिकुलर होगा, तो हाइट हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालनी है ना। तो इस पेलो पाइप परपेंडिकुलर की हाइट डायरेक्शन। कितनी होगी? हाइट होगी कि u को हम प्रोजेक्ट करेंगे u क्रॉस v क्रॉस w के ऊपर, यानी ये u है ना, इसको हम्म प्रोजेक्ट करेंगे, इसकी हम्म। प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसको हाइट क्या होगी? हाइट विल बी द हाँ। प्रोजेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन। व्हाट वी विल डू, we will compute the projection of vector u over v cross w। अभी ओके। कल हमने, यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी वेक्टर u की प्रोजेक्शन v की डायरेक्शन में, उसका फार्मूला क्या था? हम्म। फार्मूला था u बस डॉट v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर्ड इनटू v। दिस वाज द फार्मूला। हम्म। that was it, सही formula। है। हाँ जी। दिस सही वाज है। द फार्मूला। u डॉट v नॉर्म ऑफ v स्क्वायर टाइम्स v, ये फार्मूला है। अभी आप इसको हम्म फार्मूला को यहां पर रखोगे, नॉर्म ऑफ v क्रॉस w, तो प्रोजेक्शन ऑफ u ओवर v क्रॉस w होगा इस हिसाब से, u डॉट v क्रॉस w, v की जगह v क्रॉस w आ जाएगा, v की जगह हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो उसका ट्रायंगल, v हाँ, क्रॉस यस w। यस, उसका सही प्रोजेक्शन है। है ना। ओके ओके। जी जी। या डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v क्रॉस वी w क्रॉस टर्म। स्क्वायर, और यहां पर वेक्टर आएगा v क्रॉस w। सही है। दिस इज अ वेक्टर। सही यहां है। पर ये वेक्टर है, या ये वेक्टर है। ठीक है वेक्टर है। मुनीब? ओके। क्लियर हो गया? ठीक है। ये क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या चीज है? ये स्केलर है या वेक्टर है? ये वेक्टर है। नो नो, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, डॉट डॉट प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट देन इट्स स्केलर। पूरा स्केलर हो गया। स्केलर है, ये नीचे स्केलर वाला है, ना। तो इसको हम ऐसे हाँ लिखेंगे u डॉट v क्रॉस w, मैग्नीट्यूड। स्केलर के लिए हम हाँ, नॉर्म सही नहीं है यूज सही है करते सही हैं। है। सही है। और ये क्या चीज है? हम्म ये वेक्टर है। दिस इज, ये वी वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देती है, राइट? हम्म सो डिनोमिनेटर में v क्रॉस w वो नॉर्म कैंसिल हो स्क्वायर, जाएगा। ये सारे हाँ, कैंसिल हो जाएंगे सर। सही है। बाकी क्या सही है बचा सही है आपको? सही है सही है सही है। पीछे वो u स्केलर डॉट, रह गया। जी जी, क्या बचा आपके पास? यू डॉट वी डॉट स्केलर ट्रिपल मैग्नीट्यूड उसका। प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तरह से। ट्रिपल मैग्नीट्यूड मींस, प्रोडक्ट, अच्छा तो। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इट शुड बी पॉजिटिव, है ये स्केलर क्वांटिटी। यस, दिस इज ऑब्वियसली क्योंकि हाइट है ना, तो वॉल्यूम, स्केलर ही। जी जी, हम्म। क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी वजह से ये हमें एब्सोल्यूट फंक्शन लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा। Okay. अच्छा, दिस एब्सोल्यूट, ओके ओके, एबीएस। This, ओके। yeah, this because this is volume of the parallel pipe. This is the formula to compute volume. ठीक। So ये क्या चीज है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं, हम इस फार्मूला को यूज करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यानी अभी आपको कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप विद दी साइड्स, थ्री साइड्स। So we know the formula simply. Volume is u dot v cross w, like this. हम्म। तो यू। पहले v cross w निकाल लेते हैं। What is v cross w?
जे के वी देन वी को 3 1 2। रखेंगे और डब्ल्यू को मैंने फोर रखेंगे। फाइव वन पहले रखे हैं। हाँ, वी ऑफ क्रॉस कोर्स, हाँ, डब्ल्यू। सेकंड सेकंड है, वी क्रॉस डब्ल्यू, ओके। हाँ डब्ल्यू। हाँ। ओके, मैं समझ रहा था अगर आपने यू डब्ल्यू वी क्रॉस, किया। नहीं 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 हम्म। नहीं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी ना मुझे, फिर मैं डॉट प्रोडक्ट हम्म। कंप्यूट करूंगा ना, ऐसे कैसे करूंगा, नहीं कर सकता ना ऐसे। सही है मुनीब, ठीक अब है, इसको फिर एक्सपेंड करते हैं एक्सपैंड अगेन करके फर्स्ट देन। रो। जी जी। ये ठीक है। होगा 20 - 2 -J, माइनस। 16 - 1 प्लस के। अभी आप देखना मैं सही कर रहा हूँ, गलती हो तो मुझे बता देना। के एट के माइनस का फाइव सही है। -5 से 8 - 1 28। हम्म। ये आएगा मेरे हिसाब से। माइनस सही है। 16 - 1 -15, हाँ सही है, सही है, सही सही सही। आगे हम क्या अच्छा। करेंगे, अभी हम डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे, यानी यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो यू हमें क्या ठीक है। दिया हुआ है, यू हमें दिया हुआ है 3 1 2। ठीक है, 3 × 18। 3 1 2 डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हम इसके साथ, 18 - 15 3 के साथ। तो जो भी डॉट प्रोडक्ट हम्म। आए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। 3 × 18 कितना होगा, 30 20 54। Third. तो रिकॉर्ड कर रहा था मैं पहले भी, सॉरी। It's कोई okay. मसला तो नहीं है मुनीब? नहीं, नहीं। सो हम चलते हैं वापस। कैन यू सी दी स्लाइड्स नाउ? आ रही है। आगे लाइट्स चले। मतलब? सॉरी। आपने लाइट्स बोला है, लाइट्स या लाइंस? नहीं नहीं, स्लाइड स्लाइड। स्लाइड, अच्छा स्लाइड्स, यस आई कैन सी दिस। हाँ हाँ। स्लाइड। सो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, ये प्रॉब्लम है एक इस एक्सरसाइज में, अगर आप चाहें तो ये हम करें, नहीं तो आगे चलें। When you look parallel to the YZ plane. एंड Ooh. परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। Find all unit vectors, तो इसका मतलब एक से भी ज्यादा हाँ, है। मतलब ज्यादा हो सकते हैं। ओके, आई थिंक ये देन कर लेते हैं फॉर द फाइनल एक्सरसाइज। ओके। सो लेट सपोज, सपोज करेंगे हम कि हमारा जो यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है, सपोज रिक्वायर्ड वेक्टर्स या वेक्टर इज इन दिस फॉर्म, बिकॉज क्योंकि ये वाईजी प्लेन से पैरेलल है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ना, वो जीरो होगा। वो जीरो होगा। हम्म। हाँ, क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर वाईजी प्लेन, सपोज करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। सही है। तो वाईजी प्लेन ये आपका आ है। सही है। तो अगर कोई अच्छा 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 अच्छा। कोई अगर वेक्टर इसके पैरेलल होगा लाइक दिस, तो इसका मतलब है इसका टर्मिनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों में एक्स की वैल्यू सेम होगी ना। हम्म जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी, फर्ज करें यहाँ पर 3 है, तो इसकी एक्स की वैल्यू 3 होगी, इसकी एक्स की वैल्यू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा दोनों का। वाई और जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा ना। सेम होगा। तो आप हाँ इसको पी, सिंपली ये नहीं लिख सकते जिस टू डायमेंशनल आप कह लें देन, लाइक फर्स्ट को पूरा ही निकाल दें, या वो फिर भी कोई जरूरी है? मसला, जरूरी है रखना है इसको, ओके। जीरो रखना जरूरी है, क्योंकि हम 3 डायमेंशंस में है ना, तो मेंशन तो करेंगे ना, कंपोनेंट तो जीरो है। कुछ भी नहीं है जीरो, तो ओके। जीरो कंपोनेंट है, हाँ ना। तो बात समझ में आ रही है, हम्म। ये जीरो क्यों रखा है मैंने? समझा दिया, वाई जी प्लेन में उसका सही है। अब हम लेट्स से वाई प्लेन को अगर हम लेते हैं एज अ बेस, अगर इसको जीरो कर देते हैं, तो देन हम एक्स जी की बात करेंगे ना सिर्फ, जो मर्जी वाई वैल्यू अगर पे हो जाए। अगर कोई वेक्टर एक्स जी प्लेन के पैरेलल होगा तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। वाई कंपोनेंट जीरो, ओके। हाँ, अभी ये कह रहा है ना कि प्लेन, जो वेक्टर है जो निकालना है हमने, वो पैरेलल है किस प्लेन के, वाईजी प्लेन वाई के। जी तो प्लेन। हम, तो हमारा एक आसानी हो गई ना हमारे लिए, थे कि इसका एक्स कंपोनेंट हमें मिल गया कि वो जीरो है। बाकी हमने वाई कंपोनेंट निकालना है और जेड कंपोनेंट निकालना। सही है। सही है। अभी हमें गिवन है, ये भी गिवन है कि परपेंडिकुलर है ये वाला वेक्टर जो हमें निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर्स होते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कंडीशन होती है डॉट उनकी प्रोडक्ट जीरो होता है। हाँ एग्जैक्टली, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सॉरी। जीरो। नो डॉट नो, डॉट प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट, जी। डॉट प्रोडक्ट, डॉट यस। प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है हम डॉट प्रोडक्ट हमें
गिवन है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, सो विल पुट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ओ जीरो। अच्छा 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 ओके ओके क्योंकि पैरेलल है ना या ना सही ना, है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ओके डॉट, ओके परपेंडिकुलर जी जी, हम्म डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो सेकंड वाली है वो ये वाली है, कॉस थीटा, ये वाली देखें। कॉस इट तो सही है अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? जीरो 90 कौन 90 थीटा की सर जगह 90, और कॉस 90 किसके इक्वल होता है? जीरो या जीरो के। इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगा हाँ सो देन आप उसमें ओके अभी इसको डेफिनेशन नंबर वन अप्लाई करेंगे। जीरो टाइम्स थ्री विल बी जीरो, वाई टाइम्स माइनस वन विल बी नेगेटिव वाई, एंड जेड टाइम्स टू विल बी टू जेड। सो वाई इक्वल्स टू टू जेड, ये हमें कंडीशन मिल गई। कैन यू हियर ठीक मी? है यस ओके। यस क्लियर है तो अभी हमें ये भी पता है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, सही है। यूनिट वेक्टर इज फाइन आल्सो गिवन दैट required vector is unit vector, required vector is unit यूनिट vector. Hello. वेक्टर So what is the property of a unit vector? इट्स What is the नो property of a आइडिया unit vector? Haha. Why? Unit vector means its magnitude is one. ओके सॉरी 1,00 I have no राइट idea. So नॉर्म निकालेंगे मुनीब। वेक्टर क्यों, कौन सा गिवन जो हमने सपोज किया है वो यहाँ पे रख देंगे। जीरो सेकंड वाला वाई सो एंड 0,11 जीरो वाई एंड जेड, ये हमने एंड सपोज किया है जी ना। ओके ओके जी जी। अभी हमें ये भी मिल गया। हम्म अच्छा, नॉर्म कैसे निकालते हैं? डेफिनेशन यूज उसका करें नॉर्म की। स्पेस या जी, ओके इक्वल टू वन। अभी हमें पता चल गया कि y किसके इक्वल है? 2z तो आप उसे टू सब्स्टिट्यूट जी कर के। देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा फोर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू वन। ओ ओके इसको रूट तो करें ये हो जाएगा फाइव स्क्वायर जी करें बोथ स्क्वायर साइड्स इक्वल टू वन, स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे। फाइव हम्म जी स्क्वायर इक्वल टू वन, सो सी स्क्वायर इक्वल टू वन ओवर फाइव। सो z मुनीब, इक्वल्स टू रूट जी 1 इक्वल ओवर टू, 5 दो वैल्यूज मिलेंगी। पॉजिटिव माइनस लेकिन आ हाँ दोनों ओके मिलेंगे, हाँ। तो अभी मुझे ये बताएं कि y किसके इक्वल होगा? y बराबर है टू जेड के। हम्म तो इसको प्लस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस, अंदर जी जी, रूट प्लस 1 ओवर माइनस 5 टू ओवर रूट फाइव, ये। यस अच्छा या हाँ। इसमें तो भी हमें, प्लस माइनस होल्ड करेगा ना हाँ डेफिनेटली होल्ड करेगा। प्लस के लिए ओके प्लस आएगा, माइनस के लिए माइनस। देखो प्लस पुट करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस पुट करेंगे तो माइनस आएगा। हाँ ये वो तो क्लियर है मैं बस वो सब्स्टिट्यूशन का पूछा था मैंने, कि यानी इस ये वजह मैंने से साथ ही लिख दिया है, अलग अलग लिख सकता था लेकिन मैंने हम्म साथ ही लिख दिया ना। नहीं इट्स तो मुझे ओके पता है कि सही है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यही होगा कि दो 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 जीरो दो कमा मिलेंगे ना। जी जी, दो मिलेंगे ना। जीरो हाँ जी कामा टू टू अपॉन ओवर फाइव, रूट 5 कोमा वन अपॉन कमा फाइव। अच्छा सही अब है। इसमें आप तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे ना इसमें तो आप सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हैं उसके प्लस माइनस नहीं लिख सकता हूँ साथ में, अलग अलग लिखना अच्छा चाहता हूँ। अलग ओके हाँ, ओके दो वेक्टर्स है ना। हम्म तो आपको अगर समझ में ना आए तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। सो दीज आर द टू रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर, ये दो मिले ये हमें। भी इसीलिए कह रहा था फाइंड क्लियर द है ऑल द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर गिवन कंडीशंस ऑन देम। जी हाँ मुनीब, हाँ कोई अच्छा टू सवाल है तो वेक्टर्स पूछें, आगे चलें। नहीं ये तो क्लियर है तो और सवाल मैंने काफी ज्यादा लिखे थे, इसमें और भी हैं, मैं अभी इसको हम खत्म करेंगे आज, सिर्फ यही करेंगे। और यानी कल जो है ना, यानी नेक्स्ट क्लास हम्म में मैं कोई और चैप्टर उठाना चाहूंगा, या वेक्टर्स, या वो वाला अपना मैट्रिसेस उठाएंगे, या वेक्टर स्पेसेस, अभी जो आप बोलो। आई थिंक वेक्टर स्पेसेस क्योंकि वो प्रेडिकेट है ना इसलिए उसके लिए सही है, सही है। वो क्या कहते हैं उसको प्रीरेक्विजिट जिसको बोलते हैं ना मैट्रिसेस के अच्छा, ऊपर जाने के लिए अब वैसे इसमें तो वेक्टर एक स्पेसेस,
वेक्टर स्पेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा या वो इंपॉर्टेंट है ना। मेट्राइसिस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेक्टर स्पेसेस में जाने से पहले ना, ये हमें वेक्टर्स इन एन स्पेस करना जरूरी था। ठीक है, ये वेक्टर्स हाँ, इन एन एन स्पेस। स्पेस हम कर रहे हैं क्योंकि ये बेस है इसका। अभी जब हम्म। वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होगी, तो फिर वेक्टर हम्म। स्पेसेस पे जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में ना, क्योंकि वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो अभी हमें ठीक है। वेक्टर समझ में आ गए, क्रॉस उनके दरमियान अलजबरा उनका हमने समझ लिया, उनकी हाँ एप्लीकेशंस कर ली। वो। ठीक है, वेक्टर्स का एन स्पेस में अगर हमने कर लिया, प्रॉपर्टीज भी कर ली काफी ज्यादा, तो वो हम्म। सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं। ज्यादातर सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो की हमने, वो सारी वेक्टर स्पेसेस में इनहेरिट होती हैं। तो अच्छा। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ओके। डेवलप हो जाएगी ना हमारी एब्स्ट्रैक्ट की। तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट। विजुअलाइजेबल, ये नजर आते हैं ना, ये इसकी हाँ जी, ज्योमेट्रिकल हाँ जी, ये फिजिकल तो। इंटरप्रिटेशन है ना, ज्योमेट्री है ना इसकी। तो ये समझ आता है। ज्योमेट्री। तो जब वहां पे जाएंगे ना, तो ज्योमेट्री नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन हाँ। नहीं होगी जस्ट। सही है। अच्छा, 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 तो ओके। वहां पे चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन यहाँ से हम लेंगे। एन स्पेस में जो ओके। चीजें हैं वही सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन वहां पे उनकी नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगा वो। सो हम्म। ये हमने कर लिया, अभी हमें ओके। मसला नहीं होगा। ये अभी एप्लीकेशंस चल ठीक रही है। हैं। 17 में क्या करना है? इसको तो हाँ, ये वही था ये तो आसान है डिक्लेयर द प्लेन। या दिस इज द सेम, मुझे सिमिलरली आप कर क्या? सकते हैं इसका। एरिया अभी हमने वन किया है। ओवर टू हाँ हाँ हाँ, एरिया नहीं निकालना, सिर्फ वेक्टर निकालना है जो ओ, इस सिर्फ वेक्टर इसके, निकाल। हाँ हाँ, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी ये जो प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। ओके। यानी ऐसे, ऐसे वेक्टर निकालना है ये। ओके। यू वो भी था प्रोजेक्शन वाला ना। अप्लाई कर हाँ, सकते हैं प्रोजेक्शन फिर। वाला नहीं, जस्ट वेक्टर निकालेंगे। तो ये वेक्टर किससे मिलेगा? हम क्या करेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी हम्म। वेक्टर, और फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे, ये ए सी वेक्टर। क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और सी भी गिवन है, मुनीफ। क्लियर है? हम्म। तो हम और अब वेक्टर्स सी भी निकाल कंप्यूट सकते करने हैं। की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, नो नीड। अभी हमें क्या नो करेंगे? नीड, ओके। हाँ, अभी हमें एक वेक्टर चाहिए ना, जो कि हम्म। परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के। तो हम सिर्फ करेंगे ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि हमें ओके। हाँ जी, हाँ जी। ये हमें मिल जाएगा एन। ये कह रहा है हाँ, फाइंड अ जब वो वेक्टर एन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो आपने सिर्फ ये निकालना है, आप कर लोगे। यस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रिवियल या। अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता देना। ठीक है, आगे चलें। नहीं, नहीं, इट्स आई थिंक वैसे भी टाइम खत्म हो गया है। सो इसका तो आई बाय बाय थिंक करें। यस, बाय बाय कर देते हैं अभी क्योंकि टाइम खत्म हो चलें गया चलें है। चलें चलें चलें, मैंने वैसे ज्यादा टाइम ले लेता हूँ आपका, मुझे अंदाजा होता है, नहीं, लेकिन नहीं। मैं कोशिश करता हूँ uh, कंप्लीट करने के लिए, कि आपका फायदा हो थोड़ा सा, जितना हो सके। तो चले। क्योंकि वो कैलकुलेशन में आ जाता है ना, दैट्स व्हाई काफी ट्रिवियल होता है, so इसमें हम उस जी पे जी जी इतना जी। फोकस नहीं करना चाहते, मैं ज्यादातर उसका अंडरस्टैंडिंग पीछे। हाँ, अभी इसमें भी वही अंडरस्टैंडिंग है 18 प्रॉब्लम में। जैसे मैंने आपको पेलो ये- पाइप का एरिया समझाया ना, तो ये आप हम्म, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन भी सिमिलरली कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे आप वॉल्यूम ऑफ द पेलो पाइप, हमने फार्मूला बन निकाला था, इसमें फार्मूला निकालना है। और ये फार्मूला दे रहा है कि फार्मूला, इसको प्रूव करके दिखाओ ये बात। तो आप कर लोगे मेरे ख्याल ये से। वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये वो पीएसएल एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसमें। ये वो है प्रोजेक्शन वाला, यानी बेस लेंगे हम प्रोजेक्शन वाला। ये, और इसका परपेंडिकुलर ये लेंगे, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रोजेक्शन आपने देखनी है कि क्या होगी जस्ट। दैट्स ट्रू। प्रोजेक्शन से आप मल्टीप्लाई करोगे बेस के एरिया से, तो आपको साबित करना है ये फॉर्मूला। तो आप देख अच्छा, लेना उसका इसको, इक्विवेलेंट होना है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा आई थिंक। देख लेना आप इसको, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन निकाल सकते हो इसके इक्वल या नहीं। ओके, इसको मैं ये इस, कंप्यूट ट्राई करूंगा। इसमें इसमें पुट करना है आपने, एरिया ऑफ द बेस या टाइम्स हाइट। सही है। एक बेस हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन, या ये क्लियर है। हाँ, ये सब शूट कर दो। हम्म। चलो, ये खत्म करते हैं हम। तो ये पहली आपकी शीट जो है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है विद वर्कशीट। वर्कशीट आप कर लेना, देख लेना थोड़ा बहुत। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट में। ओके। नेक्स्ट वीक में। टेक केयर। सही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बस।